Hello children, welcome to our civics class. Students, in the previous session, you heard about the split in Congress, resulted into affection within Congress, which was known as syndicate. Even you were explained about Indra versus syndicate, where Indira Gandhi had to face the challenge from syndicate, which was a group within Congress. She had less issues to face the opposition than to the syndicate. You were also explained about presidential election, in which the difference of opinion between Indira Gandhi and syndicate members were open issue. It was an open issue to the people. And finally, in November 1969, Congress was divided into Congress O led by the syndicate and Congress R led by Indira Gandhi. So with this, today we are going to start a new point number 6. Point number 6, the 1971 election and restoration of Congress. बच्चों, पीछे आपने सेशन में सुना कि किस प्रकार कांग्रेस का विभाजन हुआ, विभाजन क्यों हुआ, और वह भी कांग्रेस के अपने ही मेंबर्स के बीच एक अलग दल बन गया जिसे सिंडिकेट कहा जाता है। इसके बारे में आपने कल सुना है। आपने एक टॉपिक और पढ़ा था, इंदिरा बनाम सिंडिकेट, उसके बारे में भी आपने सुना कि इंदिरा गांधी को विपक्ष से उतना खतरा नहीं दिख रहा था जितना उनके अपने गुट, जो कांग्रेस के खेमे में गुट था, सिंडिकेट नाम से बना था, उससे उन्हें अधिक खतरा था। इसके साथ ही 7 राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में भी आपने पढ़ा, जहां दोनों ग्रुप के, दोनों ही कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच जो विवाद था वो एक प्रकार से स्पष्ट हो गया। और फाइनली 1969, नवंबर 1969 में कांग्रेस के अंदर जो गुट बना था वो कांग्रेस ओ, जो सिंडिकेट के लीडर्स का था, मेंबर्स का था, और कांग्रेस आर जो इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, द 1971 इलेक्शन एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस, 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। The 1971 election and restoration of Congress आज का टॉपिक है, the 1971 election and restoration of Congress, 1971 का चुनाव और कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। Students, you heard that split of Congress was really a jolt to Congress. कांग्रेस का विभाजन होने से कांग्रेस के जो उनका अपनी डिग्निटी थी उसको बहुत ही गहरी आघात पहुंचे। ये सही है कि कांग्रेस को लोकसभा में सीटें मिल गई थी, लेकिन सरकार बनाने में उन्हें सीपीआई और डीएमके के राजनीतिक दलों का सहयोग लेना पड़ा। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस रिजल्टेड द गवर्नमेंट इन minority to form the government, so it had taken support from CPI and DMK political parties to form the government or to continue to its office. But it is said that with this, Congress became more conscious. Indira Gandhi became more conscious. So she started framing the policies on socialist ideas. उन्होंने समाजवाद के आधार पर, सभी का हित हो इस आधार पर उन्होंने अपने पॉलिसी बनाने शुरू कर दिए। And she implemented the land reform laws
उन्होंने भूमि सुधार के परिप्रेक्ष्य में कई नियम बनाए एंड विद दैट लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन वाज आल्सो डन बाय हर. Even you heard about the privy purse. Of course, it gave a loss to the princess. जो प्रीवी पर्स की समाप्ति इंदिरा गांधी ने किया था, उससे राजा महाराजाओं को नुकसान पहुंचा, लेकिन देश की सामान्य जनता से को उससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह सामान्य जनता के हित में नहीं था, ना उन्हें उससे कोई लाभ मिल रहा था. So it is said that Indira Gandhi did so because she wanted to become an independent personality. इंदिरा गांधी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया क्योंकि वह स्वयं एक आत्मनिर्भर राजनेता बनना चाहती थी. Because her party was supported by other parties to form the government, so that was also a challenge for her, as you have heard yesterday in the session, that the non-Congress parties, the coalition parties who had formed the government in 8 states, they faced many shortcomings. You have heard in yesterday's session. Either president rule was imposed or the party became in minority. So that also was a challenge for Indira Gandhi. So she wanted to become an independent personality. So what did she do? She started framing the policy for public welfare. And it is also said that her government recommended dissolution of Lok Sabha. उन्होंने क्या किया? पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनहित के लिए कई नियम बनाए. और इतना ही नहीं, उसी के साथ उन्होंने लोकसभा को भंग करने के लिए मांग की, जो दिसंबर 1970 में हुई. उनकी यह मांग, ये रिक्वेस्ट लोकसभा भंग करने की, जो 1970 में हुई, ये कहा जाता है कि उनके लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कदम इंदिरा गांधी ने उठाया था. दिस recommendation for the dissolution of Lok Sabha was really surprising, and it was a brave step which was taken by Indira Gandhi. Finally, the Lok Sabha was dissolved and 5th general election had taken place in February 1971. इस प्रकार लोकसभा भंग हो गई और 5वां आम चुनाव फरवरी 1971 में हुआ. Now we'll see point 6A, the contest. 6A, the contest. अब आपने इसमें सुना कि किस प्रकार की परिस्थिति बन गई थी गुटों के बीच. अब चुनाव का समय था, दोनों पार्टीज में एक मुकाबले का समय था. किस प्रकार से इंदिरा गांधी ने उस मुकाबले का सामना किया, उन्हें विजय मिली या पराजय, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे. सो चिल्ड्रेन, द कॉन्टेस्ट स्टार्टेड. मुकाबला आरंभ हुआ इलेक्शन के ग्राउंड पर इंदिरा गांधी और उनके विपक्षी पार्टियों के बीच. So the electoral contest against Congress R, which was led by Indira Gandhi, it was considered that it is a weak party. जो पार्टी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में थी, जो CPI और DMK के सपोर्ट से शासन कर रही थी, जब ये इलेक्शन का समय आया तो लोगों ने कहा कि ये पार्टी तो अत्यंत ही कमजोर पार्टी है, बिकॉज द रियल स्ट्रेंथ वॉज अंडर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कांग्रेस. को कहा जाता है कि जो कांग्रेस का मुख्य जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, कांग्रेस ओ सिंडिकेट के लीडरशिप में, उसमें ही वही शक्तिशाली ग्रुप है. सो सिंडिकेट के मेंबर्स ने इंदिरा गांधी को चैलेंज करने के लिए व्हाट डिड दे डू? दे just to challenge Indira Gandhi, the major non-communist parties and non-Congress, they formed an alliance which was known as Grand Alliance. इंदिरा गांधी को शिकस्त देने के लिए उनके विपक्षियों ने मिलकर एक गुट बनाया, जिसे ग्रैंड अलायंस के नाम से जानते हैं. So this Grand Alliance was composed of, or you can say the parties, the different political parties who had joined the syndicate were SSP, PSP, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल. इतने पार्टीज ने मिलकर सिंडिकेट को सपोर्ट करके ग्रैंड अलायंस बना. बट इंदिरा गांधी वॉज ओनली सपोर्टेड बाय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया.
Indira Gandhi, who was the leader of Congress R, she was supported by CPI. Still, Indira Gandhi did not lose her confidence. उन्होंने शिकस्त नहीं मानी. What did she do? She said that Indira Gandhi, her party has got new issues. She has got issues, she has got agenda, and she has got positive slogan. इंदिरा गांधी के गुट के पास मुद्दे हैं, एजेंडा है और कार्यक्रम है जो जनहित में है, जबकि विपक्ष के पास ऐसा कुछ भी नहीं है. इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है. एंड शी वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कन्विंसिंग द पीपल अबाउट द ऑपोजिशन, दैट प्रोग्राम ऑपोजिशन हैड, दैट ओनली दे हैड द प्रोग्राम ऑफ इंदिरा हटाओ. उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को बताया, पब्लिक के बीच में गई और उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास केवल एक मुद्दा है, इंदिरा हटाओ. लेकिन इंदिरा गांधी का मुद्दा क्या था? गरीबी हटाओ. इंदिरा गांधी हैड द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ. So what did she do? She was able to convince the people, and from there she started focusing on the growth of public sector. उन्होंने इसके बाद क्या किया? जनहित कार्य में उन्होंने विशेष ध्यान दिया. For that she made the plans, different plans for poor people. Poor people, you can say, for landless peasants, जो भूमिहीन कृषक थे, दलित वर्ग आप जानती हैं समाज का निम्न वर्ग माना जाता था. आदिवासी उनके बारे में भी जानती हैं आप. एंड द मिनोरिटीज, द वुमेन एंड द अनएम्प्लॉयड यूथ, महिलाओं के लिए और जो युवक बेरोजगार थे उनके लिए भी उन्होंने कई कार्यक्रम बनाए. एंड दिस वाज अ स्ट्रेटजी ऑफ बिल्डिंग एन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बाय गेनिंग पब्लिक सपोर्ट. इन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जिससे वह आत्मनिर्भर होके स्वयं अकेले अपनी पार्टी में अपना वर्चस्व कायम कर सके. तो ये था ग्राउंड इलेक्शन का मुकाबले के लिए सारे तथ्य रखे गए. So with that we'll see point number B, the outcome and after. Point B. And after. Next point is the outcome and after. नेक्स्ट टॉपिक है इस इलेक्शन का क्या परिणाम हुआ और उसके बाद क्या हुआ. Children, 1971 election results, really they were surprising. Never Congress gained such seats in even the first 3 elections when it is said that it was the era of one party dominance. 1971 का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जितने मत मिले, जितनी सीटें मिली, वह सच में चौंका देने वाली थी. इतनी अधिक सीटों पर कांग्रेस कभी विजयी नहीं हुई थी. कहा जाता है कि प्रथम 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व था. लेकिन ये वर्चस्व कहा गया कि केवल कांग्रेस ही वर्चस्व में थी, वो ऐसा काल था. लेकिन 1971 का जो चुनाव था वह चौंकाने वाला था. उसमें कांग्रेस को सबसे अधिक सीट मिली. So the party which was led by Congress gained 375 seats. 375 सीट पर कांग्रेस विजयी हुए. 48.4% सीट कांग्रेस को मिली और अकेले अलोन इंदिरा गांधी was able to gain 352 seats, which was 44%. And Congress syndicate, they were able to gain only 16 seats, which is said that it was just 1/4 of Indira Gandhi. So together Grand Alliance was able to score around 40 seats only. इंदिरा गांधी को अकेले 352 सीट मिली और सिंडिकेट को 16 सीट मिली, जबकि उसमें कई दिग्गज राजनेता थे. कहा जाता है कि जो उनका गुट बना ग्रैंड अलायंस का, उसे करीब केवल 40 सीट मिली. इस प्रकार कहा जाता है कि ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी प्रूव्ड दैट रियल कांग्रेस लाइज ओनली विद इन हर पार्टी. इससे स्पष्ट हो गया, प्रमाणित हो गया कि जो गुट इंदिरा गांधी के प्रतिनिधित्व में है वही वास्तविक कांग्रेस है. एंड इवन इट इज
also said, and it happened, that soon after the election of 1971, issue of East Pakistan, which is known now as Bangladesh, and the Indo-Pak War had taken place, which you have read in the previous chapter. But children, you have also read how Indira Gandhi succeeded by facing such major challenges. इलेक्शन में विजयी होने के बाद उनके सम्मुख इस पूर्वी पाकिस्तान का मामला और इंडो पाक वार का मामला भी आया, जिसको इंदिरा गांधी ने बड़ी सूझबूझ से हैंडल किया। ये उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। Even see to her work, even the opposition praised, saying her statesmanship. विपक्षी पार्टीज ने भी उनके कौशल को देखकर कहा कि ये राज्य कौशल इनमें है, ये महिला जिस है इस तरह की कि इनमें जो बुद्धिमत्ता है, जो कूटनीति रणनीति है, शायद हमें उस समय के लोगों में, खासकर महिला में कभी देखी नहीं गई। And it is also said that in 1972 state assembly elections had also taken place, in which Indira Gandhi was able to prove her majority। जबकि आपने पीछे पढ़ा है कि कैसे राज्य विधानसभा के चुनाव में किस प्रकार कांग्रेस के मेंबर्स जाकर तालमेल, जो गुटों के तालमेल की परंपरा थी, किस प्रकार जाकर उन्होंने दूसरे गुटों के साथ समझौता करके नॉन कांग्रेस कोalition पार्टीज बनाया। लेकिन इस इलेक्शन में 1972 के इलेक्शन में कांग्रेस को अकेले ही भारी विजय मिली। So it is said that she was considered as a protector of unprivileged and poor। ऐसे परिस्थितियों को देखकर इंदिरा गांधी की कूटनीति, इंदिरा गांधी की नीति को देखकर, उसमें सफलता को देखकर उन्हें कहा गया कि वह जो अनप्रिविलेज है, जिन्हें अधिकार नहीं मिलते, जो गरीब हैं, उनका उन्हें संरक्षक, उनका रक्षक उन्हें माना गया। So children, the victory of Lok Sabha as well as the state assemblies, of course, it proved the dominance of Congress as it had earlier। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जिस प्रकार कांग्रेस को सफलता मिली, पुनः कांग्रेस अपना वर्चस्व हासिल कर सके। Now we'll see point number C, the last point of this chapter। The last point of this chapter, restoration, कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना। As you have heard that Congress was able to gain her dignity which she had lost in the previous election। So in this topic we'll see that really the election of 1971, the result which was gained, the dignity which was gained by Indira Gandhi, does it mean that Congress system was restored? 1971 के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को सफलता मिली, क्या यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना हो गई? ये एक प्रश्न चिन्ह है। बिकॉज द पॉलिसी ऑप्टेड बाय इंदिरा गांधी वॉज नॉट अ रिवाइवल फॉर ओल्ड कांग्रेस, बट व्हाट डिड शी डू? शी री इन्वेंटेड द पार्टी। उन्होंने क्या किया? नई तर्ज पर नई पॉलिसी बनाकर अपने पार्टी में काम करना शुरू किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। ऑफ कोर्स शी वॉज एबल टू ऑक्यूपाई हर पोजिशन एंड she was popular, she became too popular, her popularity was as supreme leader। वो देश में उनका, आप कह सकते हैं, उनको बड़े सम्मान से देखा जाने लगा, जनहित हो गई के काम से उन्हें जनप्रिय, वह लोकप्रिय बन गए। उन्होंने इतने जनहित के प्रोग्राम बनाए कि वह एक लोकप्रिय नेता बन गई। इतना ही नहीं, नॉट ओनली दिस, नो देयर वाज नो फैक्शन विद इन कांग्रेस, नो अपोजिशन इवन आउटसाइड द पार्टी। ना कांग्रेस के अंदर कोई गुट था, न कांग्रेस के भीतर ही कोई उनका विपक्षी, उनका मुकाबला करने के लिए उस समय स्पष्ट रूप से खड़ा था। सो इट इज सेड दैट दिस वॉज डन बिकॉज ऑफ द वेलफेयर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय कांग्रेस। ये लोकप्रियता उन्हें कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने ऐसे जनहित कार्यक्रम बनाए,
और उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू करवाया। एग्जाम्पल फॉर द दलित्स, फॉर द पीजेंट्स, फॉर आदिवासीज, मिनॉरिटीज, अनएम्प्लॉयड यूथ, इन सभी लोगों के लिए, फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ पीपल, शी फ्रेम द पॉलिसीज एंड शी इम्प्लीमेंटेड सो दैट दे कैन गेट द एडवांटेज. Of course, children, it is said that Indira Gandhi restored the Congress system, but how? What did she do? She changed the nature of Congress. सही है कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की, लेकिन जो कांग्रेस की नीति थी उसकी प्रकृति में उन्होंने परिवर्तन किया. उन्होंने जो अपनी नीतियां बनाई वो उस समय देश के लिए आवश्यक थी, जनता की मांग थी. And the significant characteristic of Congress was that she was able to absorb all tensions and conflict. कहा जाता है कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी अच्छाई थी, आप कह सकते हैं, एक नीति, उनकी विशेषता थी कि जो भी कुछ पार्टी में होता था वह उसे बड़े आराम से सॉल्व करते थे, उसका पब्लिक इश्यू नहीं बन पाता था, विच द न्यू कांग्रेस डिड नॉट हैव. जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे उनमें ये क्षमता नहीं थी. इस प्रकार आपने अभी तक सुना कि किस प्रकार कांग्रेस को, हाउ इंदिरा गांधी वॉज एबल टू गेन द पोजीशन ऑफ कांग्रेस विच शी हैड अर्लियर. यू कैन से बेटर देन दैट, as you have just heard, that election of 1971 fifth general election gave a very good result, a surprising result. But children, time changed. Time changed, children. Later on, spaces for democratic expression of people एस्पिरेशन श्रैंक. कहा जाता है कि समय के साथ बहुत परिवर्तन आया, जनता के आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति को जो जमीन थी वो घटने लगी. अर्थात आप कह सकते हैं कि जो जनता की मांग थी और जो सुधार होने चाहिए थे, जो लोकप्रिय बनने के लिए और जो फैक्टर्स पे काम करने चाहिए थे, वो कहीं ना कहीं संकुचित हो गए. परिणाम क्या हुआ? इट रिजल्टेड इनटू, यू कैन से, The people were against. जनाक्रोश बढ़ गया, जनता में जनाक्रोश बढ़ा. उसका परिणाम क्या हुआ? देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया. Of course, the people started agitating against the government, which led to political crisis. So in this you have heard about the Congress who was able to gain her dignity, but after some time again it led to political crisis, which you will be reading in the next chapter. So children, today the chapter is done. Go on with the points properly and carefully. Okay, next session you will be getting the assignment. Thank you class. Have a nice day.